Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to talk about biological warfare and COVID-19. Basically, the aim and objective of this lecture is to propose the possibilities that whether COVID-19 was a biological weapon or not, or these are just myths and they have no connection with the realities of the world. Because when COVID-19 emerged from Wuhan, China, so there were many political scientists and politicians from the United States of America. They started claiming that COVID-19 was created in a lab of China, and China was blamed by these politicians that it has done this act to defect the United States economy and the economies of the world, so that China can emerge as a global economic power. It is said that biological weapons are the poor man's atom bomb. This quote is very interesting and very deep as well. If we try to understand and comprehend this quote, we'll know that atom bomb is very difficult to form, and it is actually very expensive. But as far as biological weapons are concerned, they are not very expensive, they are affordable, and then they can be easily disseminated without the destruction of the person who has actually disseminated it. Okay, so let's embark into the lecture and find out further what biological warfare means and how in many eras biological warfare was conducted. Let's talk about the historical perspective. During the past centuries, more than 500 million people died of infectious disease. There were 500 people who were died due to infectious diseases, and these diseases were not only just emerged from somewhere, they were actually created by the man, and they were spread by the man by themselves. The reason was that they wanted to win some war, they wanted to win some territories. So that is why these infectious diseases were spread. Several tens of thousands of these deaths were due to deliberate release of pathogens or toxins. Yes, deliberately these were actually toxicated. People were toxicated by them. तो ये सब deliberate था. Mostly by the Japanese during their attacks in China during Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने भी बहुत सारे पैथोजेंस का यूज़ किया था ताकि चाइनीज़ को वो इन्फेक्ट कर सकें और उनके सोल्जर्स लड़ने के काबिल ना रहें. टू इंटरनेशनल treaties outlawed biological weapons in 1925 and 1972. These biological weapon treaties were actually signed by many states, but they are not still ratified, and if they are even ratified कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहने को तो हो गई है, but they are not implemented practically, and states are continuously experimenting different biological weapons. They have R&D departments for that, research and development departments, और वो मुसलसल experiments हो ही रहे हैं. Bioweapons offer terrorist groups and rogue states an affordable way to counter the overwhelming military superiority of the US and other nuclear powers. अब ये तो खैर यूएस कहने की बात है, बट टेररिस्ट ग्रुप्स मोस्टली यूज़ बायोलॉजिकल वेपन्स. ओके, एंड ऑल्सो रोग स्टेट्स लाइक इराक एंड नॉर्थ कोरिया. इराक एंड कोरिया को रोग स्टेट का स्टेटस जो है, लेबल जो है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया था, क्योंकि वो उसके मुताबिक, यूएस के मुताबिक, एक्सेस ऑफ ईविल से बिलोंग करते हैं, यानी वो हमेशा इंसर्जेंसीज क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं. ठीक है, तो ये रोग स्टेट्स जो हैं बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करती हैं, और जो है ये आसान तरीका है न्यूक्लियर पावर स्टेट्स या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट्स को काउंटर करने का. Saddam Hussein has also programs to develop nuclear, biological and chemical weapons. सद्दाम हुसैन जो कि इराकी जो है वो लीडर थे, उनके भी बहुत सारे उन्होंने भी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ वेपन्स.
and he used these weapons in a 1988 massacre of Kurds. इन्होंने एक गैस बनाई थी जो कि जहरीली गैस थी, उसको यूज़ किया था 1988 में। मैसेकर को किया था इन्होंने कुर्ड्स का, जो नॉर्दर्न इराक़ में मौजूद हैं। कुर्ड्स बेसिकली एक कम्युनिटी है, एक रेशल ग्रुप है मौजूद है इराक़ के अंदर, जो इराक़ से जो है वो आज़ादी चाहते हैं और वो अपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, मगर इराक़ जो है वो नहीं चाहता कि उनको आज़ाद करे और वो उनकी सेपरेटिज़म को क्रश कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने भी क्रश करने के लिए जो है वो एक गैस का इस्तेमाल किया था ताकि वो लोग मर जाएं और वो डर के मारे जो है वो डर के जो है वो फिर पीछे हट जाएं। अच्छा, फर्दर हमें एग्जांपल्स नज़र आएगी बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जो पास्ट मिलेनियम में इस्तेमाल हुए हैं। 1155 में एम्परर बारबरोसा जो थे उन्होंने पॉइज़न किया था वेल्स को, ठीक है, ताकि जो है इंसान उसको पिए तो वो मर जाएं, उनके जो इटली में दुश्मन थे वो ख़त्म हो जाएं। 1346 में मंगोल्स ने जो है कैटपल्स के ज़रिए जो है प्लेग विक्टिम की बॉडीज़ जो है फेंकी थी क्रीमिया के अंदर, ठीक है, क्रीमियन पेनिसुला में, और उससे भी जो है ये वो क्रिएट करना चाहते थे कि जो है जो विक्टिम्स की अंदर जो प्लेग मौजूद था वो फिर वहाँ के लोगों को में फैल जाए। इसी तरह से 1495 में स्पेनिश ने जो है वाइन के अंदर यानी शराब में एक ब्लड जो है मिलाया था लेप्रोसी पेशेंट्स का, जो कि कोढ़ के मरीज़ होते हैं, ताकि ये मर्ज़ जो है वो लोगों में फैले। 1650 में जो है वो रैबिट डॉग्स को जो है उनके सलाइवा को एनिमी से फेंका गया ताकि वो मज़ीद बीमार हों। 1675 के अंदर फिर हमें नज़र आता है जर्मन एंड फ्रेंच ने जो है वो ट्रीटी साइन की थी ताकि बुलेट्स का इस्तेमाल ना करें, जो पॉइजन बुलेट्स होती हैं और जिनसे बहुत नुकसान होता था, लोग सही नहीं हो पाते थे। बुलेट की तो जो है उस चोट से एक वक्त में लोग फिर भी सेफ बच जाते थे, मगर पॉइजन से नहीं बचते थे। 1763 में ब्रिटिश ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ब्लैंकेट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स टू नेटिव अमेरिकन्स, अमेरिका को हराने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसी ज़माने में जो है वो अमेरिका अपनी आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहा था बरतानिया से, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें नज़र आता है कि 1797 के अंदर नेपोलियन ने फ्लड किए थे इटली के इलाके को ताकि वहाँ पे मलेरिया की मच्छर की अफजाइश हो सके, क्योंकि वो साफ़ पानी में पैदा होता है। 1863 के अंदर जो है कॉन्फेडरेट सेल क्लोथिंग फ्रॉम येलो फीवर एंड स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स टू यूनियन ट्रूप्स USA। जी, इस तरह से जो है ये बीमारियों को फैलाया जाता था और हमें पास में भी नज़र आता है। यानी ये हम ये नहीं कह सकते कि अब तो ये न्यू फिनोमेना है, ये असल में बहुत पुराना है और लोग जो है इस फिनोमेना को जो है वो अप्लाई करते रहे हैं ताकि वो लोगों पे सुपीरियॉरिटी हासिल कर सकें, लोगों को जो है वो कंट्रोल कर सकें, ठीक है जी। ब्लैक बायोलॉजी क्या होती है? Black biology is basically a very shadowy science in which microorganisms are genetically engineered for the sole purpose of creating novel weapons of terror। जी, ये बेसिकली बायोलॉजी है और इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है ताकि नोवेल किस्म के वेपन्स ऑफ टेरर क्रिएट किए जाएँ, लोगों के अंदर खौफ व हिरास जो है वो क्रिएट हो, क्योंकि जो साइकोलॉजी जो है वो आप ये वायरसेस को जो है वो फैला के क्रिएट करते हैं, वो आप जो है वो दूसरे वेपन से नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा, एनी साइंटिस्ट बेंट ऑन डिस्ट्रक्शन could use this information to attempt clone extremely virulent strains of bacteria and viruses। कोई भी साइंटिस्ट अगर जो है वो किसी से बदला लेना चाह रहा है या बड़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर का है तो ज़ाहिर है वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है अगेंस्ट द वर्ल्ड। अच्छा, बहुत सारे अंडरपेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें जो है वो इनकरेज किया करके पैसों की लालच दे के जो है वो डिज़ीज़ को डिज़ाइन करवाया जाता है। And then they create incurable designer diseases for the mankind, which is very sad if you think कि हम बायोलॉजी या साइंसेस का जो भी इस्तेमाल उसको कहा जाता है
करें, लोगों की खिदमत के लिए करें, मगर इस तरह के इस्तेमाल से लोगों की अमवात होती हैं और कोई भी फ़ायदा नहीं होता। Germ theory of disease. The germ theory of disease is currently accepted scientific theory for many diseases. ठीक है, ये भी एक थ्योरी है, ठीक है, जर्म थ्योरी, और ये करंटली सब साइंटिस्ट जो है इस पर बिलीव करते हैं, एक्सेप्ट किया गया है। इन मेडिसिन द थ्योरी दैट सर्टेन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ बॉडी बाय माइक्रो organisms too small to be seen except through a microscope। ये थ्योरी बेसिकली फोकस करती है उन डिजीज़ के ऊपर जो डिजीज़ जो हैं वो इन्वेजन ऑफ बॉडी में जो है वो इन्वेजन करते हैं बॉडी की, ठीक है, और ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इनको देखा नहीं जा सकता। French chemist and microbiologist Louis Pasteur, the English surgeon Joseph Lister, and German physician Robert Koch are given much of the credit for the development and acceptance of this theory। इन्होंने जो है ये तमाम साइंटिस्ट जो हैं, केमिस्ट जो हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। Okay, now there is another term that is entomological warfare, EW, जिसको short form है। EW is a type of biological warfare that uses insects to attack the enemy। Okay, ये basically ऐसी biological warfare है जो insects को इस्तेमाल करती है enemy को attack करने के लिए। The concept has existed for centuries and research and development have continued into the modern era। EW has been used in battle by Japan and several other nations have developed and been accused of using an entomological warfare program। आप देखें कि ये एंटोमोलॉजिकल वॉरफेयर का जो सिस्टम है ये बड़ा ही अनोखा है, मगर ये बहुत ही पुराने एरा से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अगर देखें वियतनाम वॉर जो यूएस के साथ हुई थी, तो यूएस ने के अगेंस्ट जो है वियतनामी जीतने के काबिल नहीं थे, मगर उन्होंने इसी किस्म की टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया था और ऐसे इंसेक्ट्स को यूज़ किया था जो काट लेते थे। तो यूएस के जो वो थे मिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स, वो जो है वो इतना पॉइजन हो जाते थे कि उनके हाथ जो है वो काटने पड़ जाते थे, टांगें काटने पड़ जाती थी और वो बिल्कुल अपाहज हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। तो इसी तरह से यूएस से वो जंग जीतने में कामयाब हुए थे। इसी तरह से हमें नज़र आता है जापान ने भी बहुत सारी बैटल्स के अंदर जो है वो कीड़ों का इस्तेमाल किया है और जंगों को जीता है। EU में एम्प्लॉय इंसेक्ट्स इन अ डायरेक्ट अटैक और एज वेक्टर टू डिलीवर अ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज प्लेग। इंसेक्ट्स के ऊपर प्लेग लगा के और उस तरह से इनको भेज दिया जाता है और लोगों में फैला दिया जाता है। अच्छा, EW की जो है वो 3 किस्म की वैराइटीज़ हैं। देयर आर 3 वैराइटीज़ ऑफ EW। लेट्स सी एंड डिस्कवर व्हाट आर दोज वैराइटीज़। One type of EW involves infecting insects with a pathogen and then dispersing the insects over targeted areas। ठीक है, EW की एक तो बेसिकली यही है कि आप इन्फेक्ट कर दें इंसेक्ट्स को पैथोजेंस के ज़रिए और देन यू डिस्पर्स दोज इंसेक्ट्स ओवर टारगेटेड एरियाज। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ EW दैट इज़ डायरेक्ट इंसेक्ट अटैक अगेंस्ट क्रॉप्स भी। अगर आपको याद हो, कराची में टिड्डी दल का भी रिसेंटली अटैक हुआ। अच्छा, ये अटैक जो है ये तो पता नहीं किसी ने किया था या नहीं, और ख़ैर इसकी कुरान में भी है कि लोकस्ट आते हैं, बट दिस अटैक कैन बी डायरेक्टेड एंड these insects can be directed to destroy the crops of a certain state। और अगर हम किसी स्टेट की क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, उसका एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो स्टेट जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा उन स्टेट के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो है जब फूड की शॉर्टेज होगी तो स्टेट फिर वो बातें भी दूसरे स्टेट की मानेगा जो उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो वो नहीं मानना चाहता। तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपने सामने अपनी एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने का या सबऑर्डिनेट बनाने का।
ठीक है। देर इज़ वन फाइनल मेथड यूज़ अनइन्फेक्टेड इंसेक्ट सच एज बीज वॉस्प एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जिसके अंदर ये बड़ा सिंपल तरीका है जिसमें आप जो है बीज और वास्प को यूज़ करते हैं टू जस्ट अटैक द एनिमी। आप उनके ऊपर छोड़ देते हैं और वो बीज उनको काट लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो डरती हैं उनसे। तो ये भी तरीका होता है और ये जो है वो वियतनाम वॉर में या और भी गुरिल्ला वॉरफेयर जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे हैं स्टेट्स के अंदर, वहाँ पे यूज़ किया जाता रहा है ये तरीका। Now let's see that which countries have them. Only 16 countries plus Taiwan have had or are currently suspected of having biological weapon programs. 16 कंट्रीज़ के बारे में ये बात कही जाती है कि इनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं मौजूद हैं। जिन स्टेट्स के अंदर कनाडा आता है, चाइना है, क्यूबा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इसराइल, जापान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, सीरिया, यूके एंड यूएस शामिल हैं। अच्छा, आप देखें कि इन स्टेट्स में जो है वो ज़्यादातर वो स्टेट शामिल हैं जो अमीर तरीन स्टेट्स हैं। और अफसोस की बात ये है कि दीज स्टेट्स आर आल्सो नॉट पीसफुल। जो ये थर्ड ग्रेड स्टेट्स या थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स को कहते हैं ना कि दे आर नॉट पीसफुल, दे आर कॉन्फ्लिक्चुअल। तो अपने आप को देखें कि आप जो है ख़ुद भी इस किस्म के वेपन्स तैयार करके और यूज़ करते हैं मज़लूम लोगों पे। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो कोविड-19 भी जो है वो क्या पता किसी ने जो है वो क्रिएट ही किया। तो देर आर रीजन्स विच एक्चुअली गिव अस काइंड ऑफ एविडेंसेस दैट कोविड-19 और सच वायरसेस माइट बी कमिंग अप, और जो है वो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देयर इज़ वाइड स्प्रेड कॉन्सेंसस अगेंस्ट द पोजेसन एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। जी, ये पोजेसन और यूज़ बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में जो है वो बहुत ही अगेंस्ट है दुनिया, और उसके कंसेंसस इस पर हुआ है और इस पर ट्रीटीज़ भी साइन हुई हैं, जिसमें से मेन ट्रीटी जो है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है। जो बेचारी ट्रीटी साइन तो सबने की है मगर उस पर अमल कोई भी नहीं कर रहा है। और अमल इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि बड़े बड़े स्टेट जब अमल नहीं कर रहे तो छोटे स्टेट बेचारे क्यों अमल करेंगे। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट नोबडी वांट्स टू एक्चुअली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बनाते रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर हैं बट दे ऑलवेज़ ब्रेक दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और जो लोग बनाते हैं वही तोड़ते हैं। Now there is another term that is bioterrorism. Terrorist groups have already tried to use biological weapons. जी, टेररिस्ट ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया बायोलॉजिकल वेपन्स को, और उनके लिए ये यूज़ करना आसान भी है। जापानीज़ कल्ट था ओम शिनक्रियो, इन्होंने भी ट्राई किया था वेपनाइज़ करने के लिए बोटुलिनियम टॉक्सिन को और एंथ्रेक्स को इन मिड-90s, और इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की थी यूएस के ऊपर, मगर ये कामयाब नहीं हो पाए थे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सितंबर 11 अटैक्स जो हुए थे उसके बाद यूएस सेनेटर्स और उनके जो मिनिस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ खतूत मौसूल हुए, और उन खतूत को जैसे ही वो खोलते थे तो उसके बाद जो है या तो बीमार हो जाते थे और जो है 5 की तो डेथ्स हो गई। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न जब उसको रिसर्च किया गया तो मालूम हुआ कि उसको उन लेटर्स पे एंथ्रेक्स जो है वो लगाया गया था। एंथ्रेक्स एक पैथोजन है और उसको लगाया गया था जिसकी वजह से लोग जो है उससे इन्फेक्ट हो जाते थे, और दैट इज़ वाई दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। टेररिस्ट जो हैं दे आर वेरी मच ड्रॉन टू यूज़ बायोलॉजिकल वेपन्स। The reason behind the usage of the biological weapons by terrorist groups is that they are affordable in nature, आसान है, they create a great psychological impact, और इसकी डिलीवरी बड़ी सिंपल है। आसानी से आप स्प्रे कर दें, आसानी से आप इसको डिलीवर कर दें तो ये डिलीवर आसानी से हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादातर टेररिस्ट ग्रुप्स या जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बायोलॉजिकल वेपन्स को जो है या तो ईजाद करने की कोशिश करती हैं और इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अब हम बात करते हैं एंथ्रेक्स के बारे में कि एंथ्रेक्स कैसा पैथोजन है, क्या है, किस तरह जो है प्रोड्यूस किया जाता है और इसके क्या लीथल इम्पैक्ट्स हैं मैनकाइंड के ऊपर। एंथ्रेक्स बेसिकली बैक्टीरिया है
और ये बहुत ही ज़्यादा लीथल स्पोर्ट्स जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, ये सांस के ज़रिए दाखिल होता है और अगर बड़ी तादाद में इसको इनहेल कर लिया जाए तो इट कैन बी फैटल फॉर योर लाइफ। ठीक है, द डिज़ीज़ दैट यूजुअली इज़ फैटल अनलेस ट्रीटेड विद लार्ज डोजेज। इसको अगर ये आपकी मौत का बायस बन सकता है इन अनटिल अनलेस इसकी वैक्सीन इस्तेमाल की जाए। इसकी वैक्सीन जो है वो ईजाद हो चुकी है, मगर इसकी वैक्सीन अगर सही टाइम पे यूज़ नहीं की जाए तो फिर ये आपके लिए लीथल हो जाता है। एंथ्रेक्स स्पोर्स आर ईजी टू प्रोड्यूस एंड कैन रिमेन वायबल फॉर मोर देन 100 ईयर्स इफ़ केप्ट ड्राई एंड आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। जी, एंथ्रेक्स को अगर आप जो है वो ड्राई और सनलाइट के बगैर जो है वो रखें तो 100 साल तक जो है ये जो है वो सरवाइव कर सकता है और ये नहीं मरता, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर एनी वन कि अगर आप कहीं भी जो है वो लगा के चले जाएं, ऐसा कोल्ड एंड ड्राई प्लेस है और वहाँ पे कोई काम करता है तो वो तो जो है वो इस डिज़ीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। However, their long shelf life makes them well suited to weaponization in device that can deliver a widespread aerosol। जी, इसको बहुत आसानी से डिलीवर किया जाता है किसी भी वेपन में डाल के। अच्छा, ये लोगों से लोगों में इतना ज़्यादा नहीं फैलता बट फिर भी बहुत ज़्यादा लीथल है और उसकी जो है इससे बचना चाहिए और इसका यूजेज नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है हम तो यही कहेंगे। हाउएवर इसके लिए वैक्सीन बन चुकी है और इसका इलाज जो है वो मौजूद है, फिर भी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो जारी है और बहुत सारे लोगों को इससे ख़त्म किया जाता है। यानी सांस के ज़रिए जाने वाले जो है वो पैथोजेंस या बैक्टीरिया टॉक्सिन्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि लोग तो सांस लेना कभी भी नहीं रुकेंगे और सांस के ज़रिए कोई भी चीज़ बहुत आसानी से जो है वो ट्रैवल कर सकती है as compared to giving a food item to anyone or something like that। अच्छा, अब हम जिस वायरस की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही कंटेजियस और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है विच इज़ नोन एज़ एबोला वायरस। और जो है हम सब ने ही सुना था जब ये इमर्ज हुआ था, आउटब्रेक हुआ था 1976 में, तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डेथ्स होना शुरू हो गई थी। अच्छा, एबोला वायरस को भी जो है ना एक बायोलॉजिकल वेपन का स्टेटस हासिल है और लोग कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन ही बनाया गया था टू कंट्रोल अफ्रीकन पीपल। अच्छा, एबोला वायरस जो है वो बेसिकली हेमोरेग फीवर है। ठीक है, इससे फीवर हो जाता है, बहुत ही हाई फीवर होता है और जो है लोग जिसको भी हो जाता है वो बहुत क्विकली जो है वो मर जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। EVD अकर्ड 1976। ठीक है, इस 1976 में हुआ था ये उसका आउटब्रेक एंड दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जो है इसका आगाज़ हुआ और सिंस दैट देन मैनी सीवियर आउटब्रेक्स अकर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सूडान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स जो है एबोला वायरस के हो चुके हैं। विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एबोला वायरस अपीयरेंसेस with multiple natural outbreaks of Ebola hemorrhagic fever, it is worthy of consideration as a bioweapon by anti-national groups। ऑल्दो के बहुत डेथ्स हो चुकी हैं, लोग ये भी कहते हैं कि ये तो डिज़ीज़ है और जो है बैट्स के ज़रिए ही फैला है, मगर फिर भी जो है ये डिज़ीज़ जितनी ज़्यादा तबाही फैला चुका है तो उससे हमें यही अंदाज़ा होता है कि ये भी एज अ वेपन ही क्रिएट किया गया था, बायो वेपन, और ये अफ्रीकन इलाकों को जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। क्यों अफ्रीका के अंदर लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि अफ्रीका इज़ रिच ऑफ मिनरल रिसोर्सेज और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए सुपर पावर्स और बड़े स्टेट्स जो है वो हमेशा से जो है वो कीन थी, दे वर इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा वायरस फैलाएं और उनकी हेल्प करें जाके, तो दे विल बी मोर देन हैप्पियर टू टेक दैट हेल्प, और हेल्प के बदले में आप जो है रिटर्न में कुछ ना कुछ लेते हैं। तो इस तरह से स्टेट्स जो है वो अफ्रीकन रीजन के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं।
अच्छा, एक बात और नोट करने की ज़रूरत है कि अफ्रीकन रीजन के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वेपन वो है, गोल्ड माइंस और डायमंड माइंस भी मौजूद हैं और बहुत ही रेयर किस्म के मिनरल्स और स्टोन्स मौजूद हैं जिनको जिनका जिनको जो है हासिल करने के लिए चाइना भी काम कर रहा है, यूरोपियन स्टेट्स भी काम कर रहे हैं, यानी यूरोपियन यूनियन, यूके भी अलग से काम कर रहा है क्योंकि वो तो यूयू सब बाहर हो गया है, और यूएस भी काम कर रहा है और मुसलसल मौजूद है। आप देखें रेड क्रॉस कितनी तंजीमें जो है वो अफ्रीका में जा चुकी हैं, उनकी मदद कर चुकी हैं, मगर आज तक अफ्रीकन्स जो हैं वो सेकंड वर्ल्ड में भी नहीं आ सके। इतनी वो हेल्प ले चुके हैं, इतनी एड ले चुके हैं, मगर वो कभी भी सेकंड वर्ल्ड का पार्ट नहीं बनते और वहाँ नए नए वायरसेस जो है वो इमर्ज होते रहते हैं। HIV एड्स का वायरस भी जो है अफ्रीकन रीजन से ही हमें नज़र आया है, मिलता है, और बहुत सारे लोग उसके बारे में क्लेम करते हैं कि ये दैट वाज आल्सो ड्यू टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे कौन करता है? जो फर्स्ट वर्ल्ड ही ज़ाहिर है वहाँ जाके एक्सपेरिमेंटेशन करती है और फिर वायरसेस इमर्ज हो जाते हैं। Now there is a new calculus which is known as gene editing. CRISPR के नाम से भी मौजूद है और it actually leads to create biological weapons which are more deadly. ठीक है, nations could develop novel or modified pathogens that would spread more quickly, infect more people, cause more severe sicknesses, or resist treatments more fully. In 2012, in 2012, for example, Russian President Vladimir Putin intimated to his defense minister that he should plan to develop weapons based on new principles including genetics, gene editing, make it easier to carry out targeted assassination. अच्छा, नेशंस जो है वो ऐसे डेवलप कर सकती हैं पैथोजेंस जिससे इतनी ज़्यादा सिकनेस हो जाए कि इंसान जीत ही नहीं सकता और ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, 2012 के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर को गाइड किया था और इस बात के लिए जो है वो ऑर्डर्स दिए थे कि वो इंक्लूड करें जेनेटिक्स को अपनी मिलिट्री के अंदर वेपन्स बनाते हैं और इस तरह से वेपन्स बनाएं ताकि वो बड़े बड़े स्टेट्स का मुकाबला कर सकें। जीन एडिटिंग जो है वो बहुत ही आसान है और उससे जो है वो बड़े बड़े आप जो है लोगों को ईज़िली टारगेट करके असैसिनेट कर सकते हैं। Now let's talk about the biological weapons in world wars. During World War I, 1914 to 18, Germany initiated a clandestine program to infect horses and cattle owned by Allied armies. ठीक है, इन्फेक्ट करना चाहते थे हॉर्सेस को। Japanese experimented with the infectious agents for bubonic plague, anthrax, typhus, smallpox, yellow fever, hepatitis, cholera, gas gangrene and glanders among others. जापानीज़ ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस किस्म के इन्फेक्शंस फैलाए थे, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर में जब उनके ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया तो उनको बहुत ही बुरा लगा, जब आप भी इतना कुछ करेंगे तो आपके साथ भी तो कुछ होगा। इन द कोल्ड वॉर एरा विच फॉलोड वर्ल्ड वॉर II, बोथ द सोवियत यूनियन एंड US as well as their respective allies embarked on the large-scale biological warfare, R&D and weapon production program. कोल्ड वॉर एरा में वर्ल्ड वॉर II के बाद जो है सोवियत यूनियन और US दोनों ही जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने कंडक्ट किए और बहुत बड़ी तादाद में पैसे उस पर खर्च भी किए। स्पेशली सोवियत यूनियन वॉज इंगेज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें नज़र आती है वर्ल्ड वॉर्स के बाद वो है येलो रेन। ठीक है, वर्ल्ड वॉर से पहले ही यूज़ हुई और वर्ल्ड वॉर के अंदर भी यूज़ हुई। ये बेसिकली एयरबोर्न सब्सटेंस होता है दैट वाज एलिज्ड टू हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल अटैक्स इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम मिड 1970s to mid 1980s. Soviet Union was suspected to supply this virus to Laos, Cambodia, Vietnam and Afghanistan to support pro-communist regimes. जी, आप जो है अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर में नज़र आता है हमें कि जो है आपका सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था उन स्टेट्स को जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी या कम्युनिज़म को अडॉप्ट करना चाहती थी। ठीक है,
इसलिए येलो रेन का वायरस इस्तेमाल किया गया उन लोगों के ऊपर जो एंटी कम्युनिस्ट थे और कम्युनिज़्म को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको हवा में छोड़ दिया जाता है और फिर लोग जो है इससे मारे जाते हैं।